सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वप्नवासवदत्ते स्थित चतुर्थ अंकस्य प्रश्नोत्तराणां विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। प्रथम प्रश्न वर्तते, कामेन डैश गते, मगधः, कौशाम्बी अथवा उज्जयिनी। उत्तरं भवति कामेन उज्जयिनी गते। तदनन्तरम् आगच्छति, दृष्ट्वा स्वैरम् अवन्तिराजतनयां पञ्चेशस्व डैश पातिताः खादिताः धाविताः। उत्तरं भवति पातिताः। दृष्ट्वा स्वैरम् अवन्तिराजतनयां पञ्चेशस्व पातिताः। तृतीय प्रश्न वर्तते, पञ्चेषु मदनो यदा कथमयं डैश सर पातिताः। पंचम सर परे मदन बाक्ये कामदेव केउं सरर क्षेपण कले। षष्ठ सर। उत्तर होछि षष्ठ सर पातिताः। अनन्तरम् आगच्छति, रुज्ज्वायतं च डैश च नतन्नतां च कुटिला न सरला न बिरला। रुज्ज्वायतां च बिरलां च नतन्नतां च। तापर अछि, डैश वंश कुटिला च निवर्तनेषु मनु सप्तर्षि न रघु। मनु सप्तर्षि न रघु। कहार वंशरे कुल वंशरे जन्म होइथिले सप्तर्षि। डैश वंश कुटिला च निवर्तितेषु। सप्तर्षि वंश कुटिलां च निवर्तितेषु। तो सठिक आंसर कोटा हबो सप्तर्षि। तापरे निमुच्यमान भुजगोदर डैश कोमलस्य दुर्बलस्य न निर्मलस्य। निमुच्यमान भुजग उदरः निर्मूलस्य। सीमामेव डैश विभज्यमानानां भूमितलस्य वसुधातलस्य न अम्बरतलस्य। सीमामेव डैश विभज्यमानानां सीमामेव अम्बरतलस्य विभज्यमानानां। से काहाकू विभाजन करुथिला तो अम्बर तलकू आकाश को सते जेमती विभाजन करुथिले। केउ माने पक्षी मान कथा को आइ। मधुमद कला डैश भ्रमराः मधुकराः विहंगाः। मधुमद कला डैश। मधुमद कला किए भ्रमरा मधुमद कला मधुकराः। जो माने मधु संग्रह करिवार कला रखिचंती सेमानु कोन कहै जायछि मधुकर बा महुमाछी। 9 नंबर क्वेश्चन, वयमेव डैश वियुक्ता स्यु कांता प्रिया ना शांता। वयमेव आमे मध्य काहार वियुक्त हेइछु बोली राजा कहउचंती कांता वियुक्ता स्यु। आमे मध्य कांतार वियोगरे कोन करिछु एठारे अछु कांता वियुक्ता स्यु। पदाक्रांतानि डैश फलानि पुष्पाणि ना पत्राणि। पदाक्रांतानि पुष्पाणि। तदनन्तरम् आगच्छति 11 नंबर, स्वस्म चेदं डैश तलम। स्वस्म चेदं डैश तलम प्राणी शिला न पाद।
କାହାର ତଳଟା ଉଷ୍ମ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶିଳାତଳ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଶିଳାତଳମ୍। ମାମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଡ୍ୟାସ୍ ଗତା ନୂନମ୍ ଶୀଘ୍ରମ୍ ନା ସହସା। ମୋତେ ଦେଖିକି ଡ୍ୟାସ୍ କିପରି ସେ ଚାଲିଗଲା? ନୂନମ୍ ନା ଶୀଘ୍ରମ୍ ନା ସହସା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମାମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସହସା ଗତା। ଡ୍ୟାସ୍ ବହୁମତା ମମ ଯଦ୍ୟପି ରୂପଶିଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ୟୈ। ବାସବଦତ୍ତା, ପଦ୍ମାବତୀ ନା ଅଙ୍ଗାରବତୀ? ପଦ୍ମାବତୀ। ଯଦ୍ୟପି ପଦ୍ମାବତୀ ରୂପଶୀଳ ମାଧୁର୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତଥାପି ମୋର ବାସବଦତ୍ତା ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଏଠି ରାଜା କହିଛନ୍ତି। ବାସବଦତ୍ତା ବଦ୍ଧଂ ନତୁ ତନ୍ମେ ଡ୍ୟାସ୍ ହରତି ମନଃ ଚିତ୍ତମ୍ ହୃଦୟମ୍। ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଯାଇଛି? ମନଃ। ବାସବଦତ୍ତା ବଦ୍ଧଂ ନତୁ ତନ୍ମେ ମନଃ ହରତି। ଅନେନ ଡ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ଷିପ୍ତମ୍ ମେ ମନସ୍ତ୍ୱୟା। ଆଳାପେନ ବିବାଦେନ ପରିହାସେନ। ଅନେନ ବିକ୍ଷିପ୍ତମ୍ ମେ ମନସ୍ତ୍ୱୟା। କ'ଣ? ପରିହାସରେ ତାଙ୍କର ମନକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ? ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପରିହାସ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଛି? ବିଦୂଷକ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ କଥା। ତ ଏଠି ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତତୋ ଡ୍ୟାସ୍ ତଥୈବ ଅୟମ୍ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସେନ ନିଃସୃତା। ଗୁଣି ବାଣୀ କଥା କା ନିଃସୃତା? ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିଃସୃତ ହେଇଛି? ବାଣୀ। ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ହି ଡ୍ୟାସ୍ ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧି ନା ରିଦ୍ଧି। ତ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ହି ବିଦ୍ଧି। କାରଣ ବିଧିରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି ବା ବିଧାତା ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ହି ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଃଖମ୍ ତେକ୍ତୁ ବଦ୍ଧମୂଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ସରାଗ। ଦୁଃଖମ୍ ତ୍ୟକ୍ତୁମ୍ ବଦ୍ଧମୂଳାନୁରାଗଃ ଅନୁରାଗଃ। ସ୍ମୃତ୍ୱା ସ୍ମୃତ୍ୱା याति ଡ୍ୟାସ୍ ନବତ୍ୱମ୍ ସୁଖମ୍ ଦୁଃଖମ୍ କାମମ୍। ଶୁଣି ଶୁଣି ବା ସ୍ମରଣ କରି କରି, ଶୁଣି ଶୁଣି ନୁହଁ, ସ୍ମରଣ କରି କରି, ସ୍ମୃତ୍ୱା ମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରି କରି କ'ଣଟା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିଥାଏ? କିମ୍ ନବତ୍ୱମ୍ याति ଦୁଃଖମ୍। ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଯେତେ ମନେ ପକେଇବା ସେଟା ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେଟା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଘଟୁଛି ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯାତ୍ରା ତ୍ୱେଷା यदि ମୁଚ୍ୟେଃ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ସ୍ପର୍ଶମ୍ ବାଷ୍ପମ୍। କ'ଣ ହେବ? ଯାତ୍ରା ତ୍ୱେଷା यदि ମୁଚ୍ୟେଃ ବାଷ୍ପମ୍। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ବାଷ୍ପମ୍। ପ୍ରାପ୍ତା ନୃଣ୍ୟା याति ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସାଦମ୍। ପ୍ରାପ୍ତା ନୃଣ୍ୟା याति ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସାଦମ୍। ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧି ନା ବୁଦ୍ଧି? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ବୁଦ୍ଧି। ପ୍ରାପ୍ତ ନୃଣ୍ୟା याति ବୃଦ୍ଧି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସାଦମ୍ ପ୍ରମାଦମ୍ ପ୍ରସାଦମ୍ ପ୍ରଳାପମ୍। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ପ୍ରସାଦମ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରସାଦମ୍। ଶରତ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୌରେଣ ହିମାଳୟ କର୍ପୂରଃ ଶଶାଙ୍କଃ। ଶରତ୍ ଶଶାଙ୍କ ଗୌରେଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶରତ୍କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟଟା ଶଶାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲର ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାତ ବିଦ୍ଧେନ ଡ୍ୟାସ୍ କାମିନୀ ଭାମିନୀ ଭାବିନୀ। ବାତ ବିଦ୍ଧେନ ଭାମିନୀ। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁର ପତନ ହେଉଛି ବୋଲି
राजा कहते वात विध्येन भामिनी भामिनी माने कौन कहब मत कमेंट रे। पुष्प लबेन इदम हास बास कास क्यों पुष्प कह कास पुष्प तो आंसर कौन हम कास पुष्प लबेन इदम। साश्रुपातम डैश मम दुखम मुखम शिरम अश्रुपात क्यों मुख साश्रुपातम मुखम मम बोली किए कहते उदयन कहते। यम नवद्बाहा कन्या यम डैश नवद्बाहा कन्या कांता बाला यम बाला नवद्बाहा बोली कही माने झीटी बालिकाटी सुंदरी नुआ नुआ विवाह करिसेंती के पद्मावती। डैश श्रुत्वा व्यथां व्रजेत मिथ्यां सत्यम कथां कौन शुणिकी पद्मावती मन रे दुख हब बोली राजा कहते सत्यम श्रुत्वा जदि से कहीदेवे कि मु बासवदत्ता विषय भावुली तो सेतेबेले पद्मावती को कष्ट हब तेणु से सेते टाइम रे मिछ कहते। सत्यम श्रुत्वा डैश व्रजेत गृहे स्वर्गे व्यथां तो पूर्व पढ़िले आमे व्यथां व्रजेत। धीर स्वभाव अयम तपः डैश धीर स्वभावेयम कांता न शांति कहब आंसर कामम धीर स्वभावयम कामम कांता नो सॉरी काम। तापर क्वेश्चन कोची डैश स्वभावस्तु कातरः कहब आंसर स्त्री स्त्री स्वभावस्तु कातरः। एठी अछि स्त्री स्त्री स्वभावस्तु डैश कातरः। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च डैश गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः प्रतिदिन गुणी व्यक्तिंकर अभ्यर्थना करिबा उचित नित्यशः माने प्रतिदिन। डैश सुलभा लोके कर्तार सुलभा लोके कर्तार डैश लोके कर्तार वर्तमान कौन कहली सुलभा लोके। विज्ञातारस्तु दुर्लभा दुर्लभा। देख चतुर्थ अंकस्य प्रारंभे कह प्रविशति चतुर्थ अंकर प्रारंभ रे कहार प्रवेश होईची विदूषकर विदूषकर ना कौन कमेंट रे मते जणेबो विदूषकर ना कौन विदूषकर प्रवेश होईची। कस्य अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय काल दृष्टः राजा उदयनकर विवाह चलची कहार विवाह चलची बोली से पचारची राजा उदयन। विदूषक किम वर्जयित्वा सर्वमानयितुं कथयति भोजनं भोजनं वर्जयित्वा सर्वमानयतु इति चेटिं कथयति चेटी को से कहूची। तापर क्वेश्चन कहूची किम निमित्तं भर्तृदारिका प्रमदवनम गता कहीं प्रमदवन को जाइथिले भर्तृदारिका के पद्मावती कहीं जाइथिले शेफाली फूल देखिबा पाई। चेटी पद्मावती कृते उपवेशनार्थम पद्मावतीं कुत्र उपवेशनार्थम कथयति केउंठी बसिबा पाई पद्मावती कहूची शिलाखंड उपरे। चेटी प्रमदवने किम करती चेटी प्रमदवने फूल तोड़ुथला। अहो विचित्रता केशाम केउ मानक विचित्रता देखी एमानकर एते सुंदर विचित्रता बा विभिन्नता बोली कहिची चेटी फूल मानकु देखी बा फूल गुड़िकर विभिन्न प्रकार फूल गुड़ी को देखी से कहिची फूल मानकर केते विचित्रता अछि। आर्यपुत्रः प्रमदवने किम दृष्ट्वा सम्मानिता भविष्यति प्रचुर पुष्प संभार देखिके आर्यपुत्र मध्य निजको धन्य मने करिवे बोली कह जाय स्वप्नवास। पद्मावती केन
विरहित उत्कंठिता भवति स्वामींक द्वारा। वासवदत्ता कस्य पक्षपातेन समुदाचार अतिक्रांतम। वासवदत्ता कहा माने पाई से निजर आचरण को अतिक्रांत करि पारे बोली कहा जायछि उदयनक पाई। पद्मावती आर्यपुत्रम किम शिक्षितुम कथयति। पद्मावती आर्यपुत्रं को कौन शिक्षा करबा पई कहिछि। वीणा के बजाउथिले उदयन, तो तेणु वीणा शिक्षक भाव में उदयन को किए नियुक्त करथिले महासेन। तो वीणा वादन शिक्षा लाभ करबा पई पद्मावती कौन करिवे, उदयन को कहिबे बोली सेठारे उल्लेख करा जायछि। पद्मावती वीणा शिक्षा विषय श्रुत्वा राजा कीदृशं संवृत। पद्मावती को वीणा शिखेबार कथा सुनिकी राजा कौन हेले, कहले कि हाँ शिखेबी बोली, ना से कौन कले नीरव रहिले। उज्जयिनीं गते उदयने कामेन कति ईशवः पतिता। कति केतेटा ईश बा केतेटा सर पड़िछि तांको ऊपर बोली कहा जायछि 5टा। विदूषक आकाशे कीदृशं सारस पंक्तिं पश्यति। को भली सारस पंक्ति बा हंस पक्षी मानकु से देखिछि। बलरामंकर सुदीर्घ बाहु भली सारस पंक्ति माने उड़ुछंती आकाश रे उड़ुथिबार से देखिछि। राजा ऊर्ध्वम अवलोक्य किम पश्यति सारस पंक्तिम। चेटी सारस पंक्तिम कीदृशीं पश्यति। श्वेत पद्ममाला भली उड़ुथिबार चेटी देखिछि। का इहा गत्य निर्गता भवेत। किए एठाकु आसिकी चली जाइछि बोली कहा जाइछि पद्मावती। माधवीलता मंडपम प्रवेश काले चेटी राजानम कथम वारयति। माधवीलता मंडप रे प्रवेश करिबा समय रे चेटी राजा को किभଳି बारण करिछि। भ्रमरपूर्ण आश्रय लता को से कौन करिछि हले देछि, जा फल रे कि राजा कौन करिसेंती से जगह को आसी पारनांती। जोटा के एठी लिखा अछि भ्रमरपूर्ण आश्रय माने लता को से हले देछि, जा फल रे कि कौन अछि भ्रमर माने उड़ीचंती, जा फल राजा से जगह को आसी पारनांती। विदूषक माधवीलता मंडपम प्रवेश काले केही पीड़ितो असी। भ्रमरंक द्वारा जेहेतु चेटी हले देछि, जा फल रे कि उड़ी आसिकी से विदूषक जेहेतु आगरे थिला ताकू आगे भंवर माने कामुडीचंती। केई कांता वियुक्ता सिउ। भ्रमर माने जेहेतु चेटी द्वारा से गछटा हल्ला जाइछि, तेणु राजा कहउचंती कि एमाने निज स्त्री मानक ठारू वियुक्त हेइ जाइचंती, जेमिति कोन मु। विदूषक कीदृश इति राजा कथयति। विदूषक बाचाल बोली एठी कुआ जाय। विदूषकेन का संदष्टा। विदूषक जीभ द्वारा से कौन होइछि संतुष्ट हेइ परिबो। राजा पुरोभागिता सन विदूषकः किम न जानाति। राजांको पाखरे थाई मध्य विदूषक कौन जानी नहीं, राजांकर मनर कथा को से जानी नहीं। राजा उदयनस्य का बहुमता। राजा उदयन काहाको बेसी भल पाती वासवदत्ता। विदूषकस्य का बहुमता। विदूषक 2 जन को कहिछि 2 जन मोर प्रिय बोली, तो वासवदत्ता और पद्मावती। चेटी मते कीदृशः आर्यपुत्रः। चेटी कहिछि जे जेहेतु वासवदत्ता को राजा बहुत भल पाउचंती, तेणु से तम प्रति उदार नुहंती, से होउचंती अनुदार व्यक्ति बोली कहते। किंतु पद्मावती कौन कहते। पद्मावती मते कीदृश आर्यपुत्रः। पद्मावती कहते ना ना तमे भूल कहूच, से होउचंती उदार व्यक्ति, कारण से वर्तमान मध्य निजर मृत पत्नी को कौन करचंती स्मरण करूछंती। तेणु पद्मावती कहते ना आर्यपुत्र होउचंती उदार। आर्यपुत्र अपि कह संवृत। आर्यपुत्र अपि वसंतक संवृत। महाब्राह्मण इत्यस्य को अर्थः। महाब्राह्मण माने चांडाल। केन राज्ञः मनः विक्षिप्तम। परिहास द्वारा। परिहास द्वारा राजा किछि समय पाए तार दुख को भूली जाइचंती। इयम बाणी केन निसृता। पूर्व अभ्यास हेतु एही बाणी को वीणा बाणी को सुना जाइछि बोली कहा जाइछि।
रमणीय खलु कह केन च विसंवादितः। कथा प्रसंग होउची खूब सुंदर किंतु निष्ठुर विदूषकंकर बासवदत्तांक मृत विषयक कथा शुणी राजा कहले से कथा क्षणरू से निजकु विच्युत करिसंती। अनतिक्रमणीय ही का, अनतिक्रमणीय ही विधि, जेहेतु विधि शब्द कौन स्त्रीलिंग रे अछि तेणु अनतिक्रमणीय ही का कुहा जाय। विधि बा भाग्य, भाग्य को आमे केबे हेले अतिक्रम करी जाय परिबा नाही। किम त्यक्तुम दुखम, प्रगाढ़ प्रेम को कौन करिबा छाड़िबा बा त्याग करिबा बहुत दुखदायक अटे। कथम दुखम नवत्वम याति, स्मरण करी करी स्मृत्वा स्मृत्वा दुखम नवत्वम याति बोली आमे पूर्वरु पढ़िले। स्मरण करी करी हमर दुख कौन हेताए नुआ हेताए। कथम जनः अनृण्या याति, कथम जनः अनृण्या जाति माने अश्रुमोचन करिकी बा कांदी कांदी की गोटे व्यक्ति कौन हेताए माने अनृण्या याति बोली कहा जाय। अनृण्या अर्थात ऋण भार युक्त होई, अर्थात एठारे कहा जाय जे जेते बेले राजा कौन कहउचंती हे मित्र जेते मु मोर प्रेम को त्याग करि पारुनी सेते बेले कौन होची से प्रेम को मने पकाए पकाए बा स्मरण करी करी मो दुखटा नुआ नुआ हो जाय। एहा किंतु लोकाचार जे मन ए संसार रे कौन होइथाय मृत जनक पाई लोतक सबु लोक माने लुह गड़े थांती कारण ऋण भारु से माने कौन हेबा पाई मुक्त हेबा पाई बा निजर प्रसन्नता पाई अश्रुमोचन करि थांती बोली कहा जाय। विदूषकः किम आनेतुम गच्छति, राजा को मुह धोइबा पाई विदूषक कौन करछि जल आनिबा पाई जायछि। सदाखिण्य जनस्य कोपि सदाखिण्य एव भवति, सदाखिण्य जनर परिजन मध्य सदाखिण्य भली व्यवहार करिथांती। राज्ञः मुखम केन शास्त्रुपातम इति राज्ञः अभिहितः, काशपुष्प रेणु द्वारा बा काशतंडी फूलर रेणु द्वारा तांकर आखिरे माने पानी आसीची बोली से पद्मावती को मिछ कहिचंती। पद्मावती किम श्रुत्वा व्यथाम ब्रजेत, सत कथा सुनी पद्मावती को मनरे कष्ट आसीबो। स्त्री स्वभावः कीदृशः, कातरः बा अधीरः। सत्कारः केन प्रतिष्ठः प्रीतिमुखम उत्पादयति, सत्कार द्वारा ही जणे प्रशंसित हेइथाए बोली कहा जाउछि। सत्कारेण प्रतिष्ठ किम उत्पादयति, प्रीति बा प्रेम को उत्पाद करथाए। लोके के दुर्लभा, कर्तार सुलभा लोके, दुर्लभा के विज्ञातार, सुलभा होची कर्ता बा करुथवा व्यक्ति। कर्तार सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। तो एठारे राजा कहबाकू चाहुचंती जे गुणानां बा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। अर्थात संसार रे उत्तम बा शौर्य गुण प्रशस्ति सत्कार गुड़िकर संपादन करिबा अत्यंत सहज बा एगुड़िक मिली जिबा बहुत सहज, किंतु एगुड़िकर ज्ञाता बा एगुड़िक जे जानी पारंती सेमिति व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ बा विरल बोली एठी राजा का कहउचंती। चतुर्थ अंकर अंतिम भागरे राजा विदूषकों को कहउचंती। तो तब मानक पई क्वेश्चन होची विदूषकर ना कौन बोली मते जणेबो। क्वेश्चन देखो, विदूषकस्य नाम किम,
तापर क्वेश्चन ओहो विचित्रता कुसुमानम बोली एई लाइन टा किए कहिछि इति केन उक्तम ए चेती बी पद्मावती सी वासवदत्ता केन उक्तम इति कमेंट कृत्वा स्थापयन्तु। धन्यवादः।